Absolutely. And as we pull back the curtain to introduce today's proceedings, our first highlight is an enlightening seminar which promises to make us think, reflect, and perhaps see the world a bit differently. But first things first, traditions remind us of our roots. So before we plunge into the depths of our discussion, let's light up the beacon of hope and wisdom. We invite our distinguished principal, Professor Rajesh Giri, our convener, S. Santinath Singh, and our revered guest to the stage for the lamp lighting ceremony. Ma'am, please. Ma'am, sir, please. Colleagues and students, and warm welcome to the guests of today's program. Ms. Kavya and Nikita, sorry, Usha, इसमें और है कि मुझे business Kavya का नाम नहीं बोला मैंने बताया. And other guests, ये मेरे बहुत साल पुराना है इसमें. I just asked my students to know that our college is going hard, going high because of our dynamic and able principal, Professor Rajesh Giri, make you sir and able to do all these activities under your guidance and leadership. To express my heartfelt gratitude for dear Radhika as well as I. I'm also grateful to this wonderful institution, Professor Giri, for kindly having me here. Sir, ma'am, I'm extremely honored to be here. Are you all excited? Yes. How's the Josh? No high school. No high school. अच्छा एक चीज करते हैं साइड में. Good morning. Good morning. राधे राधे. राधे राधे. है ना Josh? How's the Josh? Yes, sir. Hi, ma'am. So as already I have been introduced, my name is Advocate Kavya Budhiraja. The topic that has been given to me very kindly is fourth wave of feminism. Now let me begin by asking you a very crucial question. Attention everyone. Attention everyone. How many of us here agree that the term feminism is one of the most misunderstood term, especially in the past decade? Okay. Question समझ आ गया? ये जो शब्द है फेमिनिज्म, क्या ये आपको लगता है सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड शब्द है, कंट्रोवर्शियल है? कोई भी नंबर ऑफ ओके. सेकंड क्वेश्चन, क्या लगता है फेमिनिज्म क्या है? What do you think? Now I want this strictly to be an interactive session so that we have something to take out of it, right? What do you think is feminism? Women power. Treat women on an equal pedestal, same as the other counterpart. Could we also keep giving them a year of the person? Thank you. What do you think is feminism? नारीवाद क्या है? नारियों के बारे में बताया जाता है. अच्छा, कोई और हमारा भाई बनाना चाहेंगे? Now I want answers from boys. What do you think is feminism?
feminism, while it seems talks only about women, I think feminism involves everyone, and feminism in its truest sense means equality of opportunity to all people, including women, men, and people across all genders, across the whole spectrum. Great answer, great answer. Can we have one last attempt from this time probably? Sir? 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 No, the other person. You could just give it a try. ऊपर से, what do you think is feminism? We can encourage him at least. अच्छा ठीक है. We have, please sir. Ma'am, feminism is not only treating the women equally, but giving other section other than boys that are men's the equal representation, mainly the women's. Very important aspect, equal representation. Could we have a huge round of applause? So I'll try to cover all of these aspects in just a little while. Now, in basic, in most simple sense, feminism is nothing but equality in terms of social life, political life, and economic life. Equality होनी चाहिए. Are we all comfortable with English or Hindi or mix of two? Mix of two. क्या सब clear आया है? Yes. तो हिंदी इंग्लिश में comfortable है? Yes. Because the main mood of this particular session is to interact with you. So there's no point if I just come here and keep giving you lecture. ठीक है. तो मैंने क्या बताया? 3 चीजों में होता है पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इक्वालिटी. मुझे एक बात बताओ, इक्वालिटी इंश्योर कौन करेगा? सोसाइटी तो सोशल एस्पेक्ट में आ गया. Yes, it will be ensured by the law. Do you understand? हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, आईपीसी है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट है, कितना कुछ है. तो अल्टीमेटली इंश्योर कौन कर रहा है? लॉ कर रहा है. Now basically in this particular session I would be dealing with 2 aspects. First is political aspect, historical aspect, covering a little bit portion of political aspect too, and the other one क्योंकि वकील हूँ मैं तो लीगल एस्पेक्ट तो आए गई. और लीगल पे मैं ज्यादा फोकस इसलिए करना चाहूंगी कि हम लोग जितना भी फेमिनिज्म के बारे में बात कर लेना, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके अधिकार आखिर है क्या, तब तक फेमिनिज्म सही मायने में आप रियलाइज कर ही नहीं पाओगे. ठीक है. तो हिस्ट्री के लिए मैं आई जस्ट स्किप थ्रू द मेन वेव्स जैसे हमने भी बात करी. तो 4 वेव्स के अंदर होता है. वेव्स क्यों रखा नाम? Why not phases? Why not stages? Why not steps? Why waves? Why 4 waves of feminism? And what was the first need? Like what was the need in the first place to actually put it into the category of waves? What do you think? Waves क्यों रखा गया? Why waves? पीक पर आती है, कभी-कभी ऑल्टीट्यूड डिफरेंट हो जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर नॉट श्योर कि वेव की बिगिनिंग कहाँ पर है और एंडिंग कहाँ पर है. और अभी जब हम ये पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा कि कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट मी बिगिन विद द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, जिसमें हम लोग बस 10 से 15 मिनट देंगे. उसके बाद सीधा वी डाइव डीप इनटू द लीगल एस्पेक्ट, द एसेंस ऑफ माय प्रेजेंटेशन. आई विल से लेट इनफैक्ट मिड 18 उसमें 1848 टू 1920s. बहुत पुरानी की बात है, 2 मिनट में करके खत्म करते हैं. देखिए इसमें ना 2 मेन इश्यूज थे. फर्स्ट इशू था कि यूएस में विमेन को राइट टू वोट नहीं था. आर यू ऑल अवेयर ऑफ दिस? स्पेशली पीपल फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड, यू आर अवेयर ऑफ दिस. विमेन सफरेज ये जो ऑफिशियली स्टार्ट हुई थी ना, फर्स्ट वेव, इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. प्लीज कैन पे अटेंशन. ये एक कन्वेंशन से हुई थी जिसका नाम था सिनेका फॉल्स कन्वेंशन. ये बेसिकली विमेन सफरेज पे थी, राइट टू वोट फॉर विमेन इन द यूएस. तो जो फर्स्ट वेव थी बेसिकली विमेन ने प्रोटेस्ट करी थी कि आपने हमें वोट करने का अधिकार क्यों नहीं दिया. दिस वाज द फर्स्ट वेव. क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, हमारे प्रिंसिपल सर ने बहुत खूबसूरती से बोला कि हम तो उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. इंडिया में क्या विमेन को कोई प्रोटेस्ट करना पड़ा राइट टू वोट के लिए? I want one answer. No. No. Why not? तो यूएस में क्यों करना पड़ा?
इस बात से हम क्या समझते हैं? देखिए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने एक चीज साफ साफ बोल दी थी कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। एंड दिस वेरी प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, वो स्टार्टिंग से ही था कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, जितने भी देश के वासी हैं, उन सबको राइट टू वोट मिलेगा। तो ये जो फर्स्ट वेव हम देखते हैं ना, जो कि ओरिजिनली यूएस में इसका ओरिजिन हुआ था, इंडिया में वो फेज आने ही नहीं दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि फेमिनिज्म जो एक एसेंस होती है फेमिनिज्म की, वो स्टार्टिंग से ही थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट वेव। अब आते हैं सेकंड वेव में, जो कि 1963 ऑनवर्ड्स हुई। सेकंड वेव हुआ था सिविल राइट्स मूवमेंट से। नाउ आई नो ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। सिविल राइट्स मूवमेंट बेसिकली था अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, जो कि अमेरिका में हुआ करती थी। उसके बाद अमेंडमेंट लाई गई, 13th अमेंडमेंट से स्लेवरी को खत्म करेगा। किसने वो मूवी देखी है ना, जॉन एफ कैनेडी वाली, उसमें जो प्रॉपर आपको दिखाया गया किस तरह से सिविल वॉर हो रही है, क्या क्या मूवमेंट, उसके बाद किस तरह से स्टेट्स ने रैटिफाई किया अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो उस सारी चीजों के बाद सेकेंड वेव शुरू हुई। अल्टीमेटली जो सेकेंड वेव का इशू था वो ये था कि एक स्पेसिफिक रोल्स हमने डिसाइड कर लिए। Why should women be confined to specific roles as enumerated by the society? क्या ये बातें हम आज भी करते हैं? मुझे क्या करना है, मेरी सोसाइटी में क्या पोजीशन है, ये मुझे कोई और क्यों बताएगा? हम आज भी करते हैं ना। This was the concept in the second wave of feminism. अब इसके दो रिजल्ट्स आए थे और बहुत अच्छे रिजल्ट, मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे। जो कि एक लॉ आया था, उसको बोला गया था इक्वल पे एक्ट। क्या हमने सुना है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? क्या हम मानते हैं इस फिलॉसफी में? तो ये एक्ट आया था यूएस में आफ्टर ड्यूरिंग द सेकंड वेव। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने रो वर्सेस वेड का नाम सुना है? सुना होगा। 2022 में यूएस सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में थी, अबॉर्शन राइट को लेकर। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो रो वर्सेस वेड वाज अ हिस्टोरिकल यूएस जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो कि सेकंड वेव के दौरान आई थी, जिसके अंदर ये बोला गया था कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको अबॉर्शन करने का अधिकार है। लेकिन जो अभी 22 प्रीवियस ईयर जो जजमेंट आई, उसके अंदर इस जजमेंट को ही पलट दिया, जिसको हम लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं ओवर रूल कर दिया। तो ये सारी चीजें थी फर्स्ट एंड सेकंड वेव की। अब आते हैं थर्ड वेव के ऊपर। इसके अंदर मेन दो इश्यूज को एड्रेस किया गया। फर्स्ट था सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एंड सेकंड वन वाज लैक ऑफ वुमेन इन पावर। अभी हमने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करी सर, राइट? रिप्रेजेंटेशन की बात करी, तो उस दौरान थर्ड वेव के दौरान महिलाओं को ये लगा जब हमें कोई रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं सरकार में, पावर ऑफ पोजीशन में, हमारे इश्यूज एड्रेस कैसे किए जाएंगे? फेयर इनफ, फेयर इनफ। अब देखिए ये जो थर्ड वेव थी ये स्टार्ट कहाँ से हुई? एक कहानी सुनाती हूँ। 1991 में there was a lady named Anita Hill. She testified against the Supreme Court nominee in the USA, and the charges that she pressed against him were that of sexual harassment. Now we are talking about that particular era in which women were not even given adequate political representations, and here was one lady who was openly confessing and openly pressing charges against US Supreme Court nominee. His name was Thomas, as far as I can remember, and the charges were that of sexual harassment. तो जब बाकी की महिलाओं ने देखा that here is a lady who is actually taking up all the courage, why not we? If we are suffering, then we also have the power to raise our voice, right? उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे जितनी महिलाएं थी उन्होंने अपनी आवाज उठानी शुरू करी, पब्लिकली बात करना शुरू किया अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट, अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, और ये डिमांड करी that we also must be made a part of the political scenario of the nation. और पता है रिजल्ट क्या आया? उसी साल 27 women were elected in the Congress in US, and that year was officially declared as the year of women. So this was the power. And the second trigger for this particular third wave was, क्या हमने punk culture का नाम सुना है? Punk culture, pop culture,
रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक। तो उस टाइम इन ऑर्डर टू रेज देयर वॉइस वहाँ की जो यूएस की जो महिलाएं थी उन लोगों ने गर्ल बैंड्स बनाने शुरू किए, म्यूजिक बैंड्स। एंड वो एक पंक कल्चर टाइप था wherein you had loud voice and then you scream against all the ill happenings taking place in the society। तो ये दो ट्रिगर्स थे। काफी सारे ऐसे ग्रुप्स थे जैसे कि ब्रैड मोबाइल, हेवेंस टू बेंसी। ये थी थर्ड वेव। अब एक बात बताइए, अब अगर हम बात करें फोर्थ वेव की, तो क्या ये जो इश्यूज थे थर्ड वेव के, वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट, लैक ऑफ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, क्या ये सारे प्रॉब्लम्स अभी रिजॉल्व हो गई हैं फुली? No. नहीं हुई ना। अभी रिसेंटली सेशन में पार्लियामेंट में कौन सा बिल टेबल किया गया? यस, वुमेन रिजर्वेशन बिल। क्या था वो बिल? वुमेन एमपी के लिए लोकसभा में रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो इन चीजों की हम आज भी बात कर रहे हैं। सो माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज दैट थर्ड वेव like has it really ended or is it just a continuation of that third wave in a more social media fueled activism? What do you think? This is something that I leave it to you guys to think. Now talking about fourth wave, it's basically nothing but the excessive use of internet to bring attention of all these issues that we've already discussed via internet as the media. कोई एग्जांपल देना चाहेगा इसका? फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। और उसके अब हम सेक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, तो सोचिए कितना वेट होगा इन सेक्शंस के अंदर, इन धाराओं के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की। 354A ऑफ द इंडियन पीनल कोड आईपीसी। देखिए, एज पर दिस पर्टिकुलर सेक्शन आप लोग ने सेक्शन नोट कर लिया 354A। इसमें चार चीजें आती हैं as to what really is contained within the ambit of sexual harassment. First is physical contact amounting to unwelcome sexual gestures. I think it's clear enough. Second, demand for sexual favor even when the woman is not at all interested. Thirdly, showing pornography against the will of women. क्या हम लोगों ने revenge pornography का नाम सुना है? Included in this particular subsection. And lastly, sexually colored remarks. अब ये जो चीजें हैं ना, ये ऑनलाइन भी हो सकती हैं और ये ऑफलाइन भी हो सकती हैं। इसलिए कंसेंट की जब बात आती है वो बहुत जरूरी हो जाती है। और इसी को जब ये ऑनलाइन होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज साइबर हैरेसमेंट। ऑनलाइन जब ये होती है, इसकी सजा सुनती है या नहीं? सुनती है, ठीक है। सो जो फर्स्ट 3 पॉइंट है, मतलब पोर्नोग्राफी दिखाना या फिर सेक्सुअल फेवर डिमांड करना, जेस्चर्स दिखाना, उसकी सजा होती है 3 साल। और अगर आप सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स दे रहे हो, किसी को जाते जाते आपने कुछ बोल दिया व्हिच इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट इट वाज सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसकी सजा है 1 साल। अब नेक्स्ट टॉपिक, वॉयरिज्म। क्या इसका मतलब पता है आपको? मैं अभी अगर आपको एक मूवी का नाम बताऊंगी ना, सबको मतलब पता आ जाएगा, याद आ जाएगा कि अच्छा ये होता है। दृश्यम देखी आप सबने? Yes. जब वो लड़की वॉशरूम में होती है तो चुपके से जब कैमरे से उसकी वीडियो बना ली जाती है, दैट इज कॉल्ड वॉयरिज्म। व्हेन द वुमन इज इन सच अ पोजीशन एंड इज इन सच एन एक्सपेक्टेशन दैट नोबडी वुड रीजनेबली लुक एट मी एंड इन कंप्लीट सेक्लूजन, अगर उस टाइम कुछ कैप्चर उनकी फोटो या वीडियो करी जाती है जहां पर एक महिला को लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वॉयरिज्म। दृश्य में जिस तरह से हुआ था, इसका जो सेक्शन है वो है 354C IPC, capturing image of women engaged in a private act. Now private act could be of 2 types. Firstly, using washroom or bathing or doing personal stuff, and secondly, I don't know whether I should say it or not, but as we're talking the legal sense, then I think it's appropriate for any advocate to just put it out right there in front of you in its bare language. If a woman is engaged in a sexual act in a hotel room, आपने बहुत सारे इसके इंसिडेंट सुने होंगे कि वीडियो जब बना ली जाती है, उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, that also comes within the ambit of voyeurism and it is punishable with the imprisonment of 3 to 7 years. Nextly, stalking. I think one of the most basic things that almost every other girl suffers by. Stalking. Stalking means following a woman even after when she denies you,
even after when she says a clear-cut no, that no, you should not follow me, either online or offline. So it clearly means that if a guy is stalking me on my Facebook continuously in an attempt of harassing me sexually or with any other ill intention which is not justified by the law, it will come within the ambit of stalking. The section is very nice. Yes, 354D. I see you. You just googled it, no? Oh, nice. That is also moving over. Anyway, we'll give you the benefit of doubt, as we technically call it in the legal sense, in court terms. Okay, the punishment is 3 years, and on the second conviction, if you are again caught red-handed doing the same act, then the punishment would further increase to 5 years. Now, these were the things which were specific for women. Women-centered things. अभी जनरल बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा होता है हमारे ऑनलाइन मीडिया पे. Defamation. फेसबुक पे कितना ज़्यादा होता है, इंस्टा पे भी कितना ज़्यादा होता है, रोस्टिंग के वीडियोस. आप सबने वो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखते होंगे जो रोस्ट करते हैं एक दूसरे को. Now, how do we know as a normal person, as a layman, that all those facts that they are portraying are they even true in the first place? Do we know? No, we just blindly have faith on them. We blindly believe all the facts that they say. Why? Because वो तो मेरा favorite है ना, वो झूठ थोड़ी बोलेगा. There's a recent, I'm not really sure whether what I heard was correct or not. I want to know from you all. So I think it was probably Anant Ambani who sent a notice to one of the comedians. If I'm not wrong. Yes. For which charge? For defamation. This was that defamation. Section is 499 IPC. And